So in the first class of the differential equation, we have discussed about the terms, order of the differential equation, degree of the differential equation, then how to form the differential equation, फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किए थे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, और उसके ऊपर डिपेंड करेगा ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना. ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेम एज ऑफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 3 है, तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3. ठीक है, दैट वी हैव डिस्कस्ड. देन ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड सॉल्विंग solution of the differential equation through variable separable method. Variable separable method जो हमने डिस्कस किया था, that was that if the differential equation, अच्छा जो सिलेबस में आपके that is first order first degree differential equation, और अगर सेकंड डिग्री इक्वेशन भी अगर कहीं होगी, सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन भी होगी, तो वो सॉल्व करके फर्स्ट डिग्री के टर्म्स में आ जाएगी. तो dy by dx वेरिएबल सेपरेबल की बात जब करते हैं, तो that dy by dx is equals to, let's say if it is 1 plus x square upon 1 plus y square. So if we are able to separate the variable function of x with dx and function of y with dy, अगर हम वेरिएबल सेपरेट कर पा रहे हैं function of x with dx, that we have discussed already, 1 plus x square dx and 1 plus y square dy, that's the variable separable form. Function of x with dx and function of y with dx अगर हम separate कर पा रहे हैं, then approach is directly integrate that integration, right? Definitely it's a function of x, it has to be integrated with respect to x, and it's a function of y, इसका integration होगा with respect to y. So that integration is x plus x cube by 3 equals to y plus y cube by 3 plus constant of that integration. That is the solution of the differential equation. ये जो लिखा गया that is nothing but the solution of the differential equation. Differential equation का solution है. If that question is like dy by dx is equals to 1 by 1 plus y square upon 1 plus x square, in that case, yes, again it's a variable separable form. It's nothing but dy upon 1 plus y square is equals to dx upon 1 plus x square, function of y with dy and function of x with dx, we are going to integrate, and dy upon 1 plus y square is nothing but tan inverse y equals to tan inverse x, and do not forget about the constant of that integration. That is nothing but the solution of that simple variable separable form. अभी हम जो next form पढ़ने वाले हैं, that is homogeneous differential equation. Again variable separable form would be there. Now I will be discussing about the homogeneous differential equation. Homogeneous differential equation. Homogeneous कहीं ना कहीं जो समझ में आती है बात, ये डिग्री सेम, ये टर्म आपने पढ़ी होती है. If you remember in pair of straight lines, टू डायमेंशन ज्योमेट्री में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की कंडीशंस होती हैं और होमोजीनियस इक्वेशन होती है. होमोजीनियस इक्वेशन से मतलब होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन दैट इज रिटन इन टर्म्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल्स टू 0. इफ यू रिमेंबर दैट, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल्स टू 0. होमोजीनियस x स्क्वायर डिग्री 2, xy डिग्री 2, y स्क्वायर डिग्री 2. दैट इज होमोजीनियस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो सेकंड डिग्री इक्वेशन है तो उसमें फर्स्ट डिग्री की या कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं होती है ना. बट ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो हमने केवल टर्म के बारे में डिस्कस किया. होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं हम. ध्यान से देखिएगा, dy by dx को सॉल्व करना है आपको. dy by dx, इफ यू आर एबल टू एक्सप्रेस dy by dx एज फंक्शन ऑफ y by x, अगर आप dy by dx को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं एज ए फंक्शन ऑफ y by x, फंक्शन ऑफ y by x के टर्म्स में अगर आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, और यू कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x by y, अगर आप फंक्शन को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ y by x और x by y, दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज नथिंग बट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. फंक्शन ऑफ y by x के टर्म्स में आप कहेंगे सर ये फंक्शन ऑफ y by x वाली बात क्या हुई, देखिएगा
केवल पहले एग्जांपल की बात कर रहे हैं कि होता क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, देन विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू सॉल्व दैट डिफरेंशियल इक्वेशन. dy by dx अगर मैं लिखता हूं, एंड इफ आई राइट x plus 2y डिवाइडेड बाय 3x plus y, that's a differential equation. That's a differential equation and that is not there in the variable separable form. Variable separable form से तो मतलब सीधा सीधा सा होता है कि variable separable form में function of x with dx, function of y with dy, function of t with dt अगर आप separate कर पाते हैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दीजिए, but it's not a variable separable form. If you observe this, इसको जब मैं सॉल्व करना चालू करूंगा, dy by dx, that dy by dx is equals to function of y by x. What do you mean by that function of y by x? If I take x common from the numerator, in fact if you observe the degree of numerator, that's a linear expression, in fact linear but degree 1, x plus 2y, degree 1 1. डिनोमिनेटर में आप एक्सप्रेशन को देखें 3x plus y, डिग्री 1 1 है ना, न्यूमरेटर में भी डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर में भी डिग्री 1 है. बोले सर ये y by x की बात समझ में नहीं आई, समझ लीजिए उससे भी. इफ यू टेक x कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर, इट विल बी 1 plus 2 y by x divided by, if you take x common from the denominator also, it will be 3 plus y by x. ठीक है, बोले सर x कॉमन लेके कैंसिल कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से. आप ऑब्जर्व कीजिए, नाउ इट इज कमिंग क्लियरली इन टर्म्स ऑफ f of y by x. ये फंक्शन ऑफ y by x ही तो बना है, 1 plus twice of y by x plus 3 plus y by x. Yes, we are able to separate, not able to separate, in fact yes we are getting a function of y by x. ये फंक्शन ऑफ y by x बन रहा है और फंक्शन ऑफ y by x बन रहा है. इट्स अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. कुछ और एग्जांपल देखो, देन विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन. और एक बात ध्यान रखना, आपने जो ऑब्जर्व किया होगा और अभी काफी ऑब्जर्व करोगे, इनडेफिनेट इंटीग्रल, इंटीग्रेशन का बहुत जबरदस्त रिलेवेंस है. देखो x square plus y square upon xy, that's the differential equation. dy by dx equals to x square plus y square upon xy. डिग्री ऑफ न्यूमरेटर x square plus y square, डिग्री 2, न्यूमरेटर की डिग्री 2, डिनोमिनेटर की डिग्री भी देखते हो आप तो x into y, डिग्री 2, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 2, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 2. बोले सर y by x वाली बात भी समझा दीजिए, समझ लीजिए. इफ यू टेक x square कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर, एक बार आपको क्लियर हो जाता है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं. मैंने आपको बताया कि अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसे f ऑफ फंक्शन ऑफ y by x या फंक्शन ऑफ x by y के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, होना ही चाहिए. इफ यू टेक x स्क्वायर कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर, ठीक है, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई, तो दैट dy by dx, ये जो dy by dx होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, एक x तो कैंसिल हुआ और इस x को अपने डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया तो y बाय x. आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ओके यू आर गेटिंग इन टर्म्स ऑफ f ऑफ y बाय x, f ऑफ y बाय x के टर्म्स में आप रिड्यूस कर पा रहे हैं. दैट्स नथिंग बट द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. दैट इज नथिंग बट द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ठीक है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, बट नाउ हाउ टू सॉल्व द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए. तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फंक्शन ऑफ y बाय x के टर्म में आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. क्या करेंगे आप, यू आर गोइंग टू टेक y बाय x इक्वल्स टू v. y बाय x को आप v सब्स्टिट्यूट करेंगे. y इज नथिंग बट y इक्वल्स टू vx, y इक्वल टू vx, ठीक है, y इक्वल टू vx सब्स्टिट्यूट किया आपने. डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y equals to vx, differentiation with respect to x, that will be dy by dx is equals to v plus x dv by dx. ये जनरल प्रोसीजर बता रहा हूं मैं आपको, then will be taking some questions. ठीक है, तो dy by dx, भाई आपने y को vx सब्स्टिट्यूट किया है, क्यों किया है, बिकॉज यू आर गेटिंग फंक्शन ऑफ y by x, तो y by x को उठा के v रख दिया. So y equal to vx, dy by dx is equals to differentiation with respect to x, that will be v plus x dv by dx. तो dy by dx को रखा आपने v plus x dv by dx is equals to, है ना, ये कहाँ रख दिया आपने, जो गिवन इक्वेशन है
इस गिवन इक्वेशन में आप dy बाई डी को प्लेस करेंगे, दैट विल बिकम v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ v। और फाइनली जब आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यू आर गोइंग टू गेट अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अगेन, वेरिएबल सेपरेबल बेसिक फॉर्म। इस v को शिफ्ट किया आपने राइट हैंड साइड में, दैट विल बी एफ ऑफ v माइनस v, फंक्शन ऑफ v विद dv एंड फंक्शन ऑफ x विद dx आप सेपरेट कर पाएंगे, दैट्स नथिंग बट द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके आपने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ले आए, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म सॉल्व करेंगे, यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट, और फाइनली v को रिप्लेस कर देंगे आप y बाय x से। बट दैट इज द प्रोसीजर फॉर दैट, विल बी टेकिंग सम एग्जांपल और उसको सॉल्व करते हैं, बट दैट इज अबाउट द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। Now we solve some differential equation, homogeneous differential equation, as I given you an example of dy by dx is equals to x square plus y square upon xy. Clearly it's a homogeneous differential equation. मैंने आपको reduce करके बताया कि okay it can be written in terms of f of y by x, as well as if you observe here degree of numerator is 2, degree of denominator is 2, yes it will be clearly coming in the form of f of y by x. बोले सर डायरेक्ट रख सकते हैं क्या, डायरेक्टली y इक्वल्स टू vx रख सकते हैं, यस यू कैन। आपको समझ में आ गया, इट्स अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सो यू केप्ट y इक्वल्स टू vx, या y बाय x को v सब्स्टिट्यूट किया तो y को vx रखा आपने, तो y को vx रखा, प्रोसीजर सेम रहेगी, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में किया आपने डिफरेंशिएशन, दैट्स गोइंग टू बी dy बाय dx इज इक्वल्स टू v प्लस x dv by dx, so dy by dx is equals to v plus x dv by dx, that will be in fact v plus x dv by dx is equals to dy by dx को रखा आपने v plus x dv by dx plus x square plus y equals to vx v square x square divided by x into vx, y को vx सब्स्टिट्यूट किया, v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल किया, 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय v, ठीक है। x इंटू dv बाई dx, x into dv by dx is equals to 1 plus v square divided by v minus of v, फंक्शन ऑफ v को हम राइट हैंड साइड में लेके आ गए, टेक द एलसीएम नाउ, ये होगा x into dv by dx, आफ्टर टेकिंग द एलसीएम 1 plus v square minus v square, v square कैंसिल होगा 1 by v, ठीक है। What you are getting? You are getting a variable separable form, function of v with dv and function of x with dx. v dv equals to dx by x. You are getting a variable separable form, और variable separable form आ रहा है तो just integrate that. इसे integrate कर दीजिए. v dv that will be v square by 2. Integration of v with respect to v square by 2 equals to dx by x. ln x plus constant of that integration, and finally do not forget to place the value of v, that v is y by x, y square by 2x square equals to ln mod x plus c, that is the result. That's how you are going to solve the homogeneous differential equation. कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपका ऑब्जर्वेशन यू आर गेटिंग इट इन द फंक्शन ऑफ y बाय x, और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 2 डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 2 वो फंक्शन ऑफ y बाय x के टर्म में आना ही है, तो प्लेस कर दीजिए y इक्वल्स टू vx, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, एंड सॉल्व दैट। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब भी आप सॉल्व करोगे यू विल बी गेटिंग अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अगेन। होमोजेनियस को सॉल्व करोगे तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आएगा, फंक्शन ऑफ v विद dv एंड फंक्शन ऑफ x विद dx। Now these two questions, and these two questions based on the homogeneous differential equation, and you have to solve these two homogeneous differential equation.
द रीजन इज वेरी सिंपल दैट द फर्स्ट वन अगर मैं लिखूंगा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 2, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 2, ये डेफिनेटली वाई बाय एक्स के टर्म्स में आने वाला है। बोले सर आप करके बता दीजिए, वाई बाय एक्स के टर्म में ला के बता दीजिए। देख लीजिए वाई बाय एक्स के टर्म में क्यों आएगा, देखो 1 प्लस सीधे सीधे यू आर गेटिंग इजीली इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ वाई बाय, आना ही है। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 2, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 2, आपने उसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ये समझाने के लिए लिखा मैंने इसको। अब आप डायरेक्टली वाई बाय एक्स को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट ओनली, you have kept y by x equals to v और y equal to vx, ये प्रोसीजर तो सेम ही रहेगी, y equal to vx, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, नो डिस्कशन, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएट, dy by dx is equals to v plus x dv by dx, so it will become dy by dx v plus x dv by dx is equals to 1 plus 3v plus v स्क्वायर, चेक करिए लिख सकते हैं, y by x को मैंने v रखा है तो 1 plus 3v plus v स्क्वायर, ठीक है, इट इज नथिंग बट x इंटू dv by dx is equals to 1 plus v square plus 2v, always you are going to get a variable separable form dv upon, जब भी आप होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे you are going to get a variable separable form, ठीक है। बात आखिरकार इंटीग्रेशन की आती है, व्हाट अबाउट dv अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, हाँ 1 प्लस वी रेस टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, है ना, ज़्यादा कहीं कभी कभी क्या ज़्यादा आता है तो कभी ज़्यादा सोच लिया, ऐसा भी मत करना। लीनियर फंक्शन है टी रेस टू पावर माइनस 2, ठीक है, इस क्या हो गया है माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस वी, यही सोच रहे हैं ना आप लोग। ln mod x प्लस सी और v को y बाय x रख दिया, हाँ ठीक है ना, v को रख दिया y बाय x। कभी कभी क्या होता है कि छोटे छोटे से इंटीग्रल में हम बड़ी बड़ी से फॉर्मूले लगा दिए तो वो गड़बड़ हो जाती है, सिंपल सी बात है, लीनियर v को y बाय x, ठीक है। व्हाट अबाउट द सेकेंड वन, नाउ लुक फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द सेकेंड वन। सेकेंड को भी अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 1, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 1, ठीक है, तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं इसे, फंक्शन ऑफ y बाय x के टर्म्स में रिड्यूस कर सकते हैं, y इक्वल्स टू वी एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x दैट इज dy बाय dx इक्वल्स टू v प्लस x dv बाय dx, देखिएगा, so v प्लस x dv बाय dx that will become x plus y को vx रखा आपने 2vx डिवाइडेड बाय 2x माइनस ऑफ vx, ठीक है, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, x कॉमन लेके कैंसिल किया, ठीक, take the LCM now, x into dv by dx is equals to, after taking the LCM, अच्छा 1 plus 2v माइनस ऑफ 2v कैंसिल ही हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, 1 plus v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस v, ठीक है, यू आर गेटिंग अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। चेक कर लीजिएगा, इट्स अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, यही आ रहा है आप लोगों का।
इंटीग्रेट कर दीजिए। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, फंक्शन ऑफ v विद dv एंड फंक्शन ऑफ x विद dx। हाँ, इंटीग्रेशन बार बार वही बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन में एरर नहीं होना चाहिए। इंटीग्रल ऑफ 2/1 प्लस वी स्क्वेयर dv माइनस ऑफ v/1 प्लस वी स्क्वेयर dv, that will be equals to dx by x is nothing but ln mod x लिख सकते हैं हम इसको सीधे सीधे, प्लस कांस्टेंट ऑफ दैट इंटीग्रेशन लिख दिया 2/1 प्लस वी स्क्वेयर, बहुत सोचना नहीं पड़ेगा, tan इनवर्स v। अच्छा, v/1 प्लस वी स्क्वेयर, हाउ टू इंटीग्रेट दैट फंक्शन, बहुत सोचना तो उसमें भी नहीं है। 1 प्लस वी स्क्वेयर को t रखोगे तो इट विल बी 2v dv dt, अभी तो डायरेक्टली हो जाना चाहिए। 1 प्लस वी स्क्वेयर इक्वल्स टू टी, तो 2v dv इक्वल्स टू dt dt बाई टी log t, ठीक है ना। तो 1 प्लस वी स्क्वेयर को t रखा आपने, तो 2v dv dt कितना हो गया ये, -1/2 ln mod 1 प्लस वी स्क्वेयर इक्वल्स टू ln mod x प्लस c, and finally place the value of x, sorry, place the value of v की वैल्यू प्लेस कर दीजिए। now look for again these two questions. The first one, dy by dx equals to y into x plus y upon 2x square. If you observe the degree of numerator that is 2, degree of denominator is 2, that's clearly homogeneous differential equation, और homogeneous differential equation है। आप कहेंगे सर इसे y by x के फॉर्म में लाना जरूरी है कि इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ले आए तब भी ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस कभी बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा होता है कि वो आपसे कह सकते हैं कि पहले उसे f ऑफ y by x के टर्म में आप एक्सप्रेस करो और फिर सॉल्व करो, तो ठीक है यार, y by x के टर्म में ले आइए, कहाँ दिक्कत है ना। आप उसको बताना होता है। मैं आपको ये बता दूं कि कई बार ये कहता है कि प्रूव दैट दिस इक्वेशन इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, बोर्ड एग्जाम्स में। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करना है तो उसको आप फंक्शन ऑफ y by x के टर्म्स में लाके बता दीजिए, तो क्लियरली वो होमोजेनियस डिफरेंशियल होगी। मतलब देख लीजिए कैसे लेके आना, मैंने ऑलरेडी समझाया आपको। dy by dx इज इक्वल टू, यू वांट फंक्शन ऑफ y by x, तो y अपॉन 2x स्क्वायर है, इसको लिख दिया y by x, x प्लस वाई अपॉन 2x, तो x प्लस वाई अपॉन 2x, तो x प्लस वाई, एक x तो आपने ऑलरेडी सेपरेट किया, इट विल बी 1/2 प्लस y अपॉन 2x, चेक कर लीजिए प्लीज, ये आ गया फंक्शन ऑफ y by x, दैट्स नथिंग बट द फंक्शन ऑफ y by x। आप चाहें तो 2 को कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। देन प्लेस y by x इक्वल्स टू v और y इक्वल टू vx, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy by dx इक्वल्स टू v प्लस x dv by dx एज इट इज छापना है, v प्लस x dv by dx दैट विल बी इक्वल्स टू v टाइम्स हाफ प्लस हाफ v, y by x को रखा v, x into dv by dx is equals to, it is nothing but v by 2 plus v square by 2 minus of v, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आना है, तय बात है। it will become x into dv by dx is equals to, what is that, v by 2 minus v, that will be minus of v by 2, 1/2 v स्क्वायर माइनस v, चेक करिएगा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म dv अपॉन v स्क्वायर माइनस v इक्वल्स टू dx अपॉन 2x। हाउ टू इंटीग्रेट dv अपॉन v स्क्वायर माइनस v, v स्क्वायर माइनस v का dv अपॉन v स्क्वायर माइनस v को कैसे इंटीग्रेट किया जाए, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक सोच रहे हैं।
dv अपॉन v इंटू v माइनस वन। इसको पार्शियल फ्रैक्शन से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इनफैक्ट पार्शियल फ्रैक्शन की भी ज़रूरत नहीं है, ऑब्जर्वेशन से भी आप उसको स्प्लिट करके कर दीजिए। आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से आप उसको सेपरेट कर दीजिए, या वी स्क्वायर माइनस वी इज देयर, तो क्या एड सब्ट्रैक्ट करोगे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए? प्लस 1/4, तो 1/4 ऐड किया, 1/4 सब्ट्रैक्ट किया, तो वी प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4 परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा 1/2 है ln mod x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। कई सारे रास्ते हैं, मतलब इंटीग्रेशन में पॉइंट ये है कि इंटीग्रेशन पे बात जाके नहीं अटकना चाहिए कि इंटीग्रेशन पे जाके आप सोचने लगे पार्शियल फ्रैक्शन से कर लीजिए या फिर परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए। इसको पहले सॉल्व कर रहा हूं मैं। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2 a ln mod x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, दैट इज द इंटीग्रल। v को रिप्लेस कर दीजिएगा बाय x एंड dx अपॉन 2x, दैट विल बी इक्वल्स टू, ये तो केवल मैंने इस पार्ट का इंटीग्रेशन किया है, दैट विल बी ln मॉडुलस ऑफ फाइनल रिजल्ट v माइनस 1 डिवाइड बाय v इज इक्वल्स टू 1/2 ln mod x. Constant of that integration can also be written as ln c. v को y by x रख दीजिएगा, विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट। हो सकता है कि वो क्वेश्चन पर्टिकुलर वैल्यू देके पूछता है कि y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1/4, तो y ऑफ 1 बता दो, जैसा भी है। y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1/4 ये इसलिए दिया है सो दैट यू कैन इवेलुएट द कांस्टेंट, ठीक है। Now look for the second question, that is x into dy by dx equals to x into cot y by x plus y. तुरंत बात आती है सर ये तो होमोजीनियस कहाँ दिख रहा है। dy by dx can be written as cot y by x plus y by x, ठीक है ना। x से डिवाइड कर दिया और आपको इजीली इट इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ y बाय x, ये फंक्शन ऑफ y बाय x ही तो आ गया और क्या है, दैट्स नथिंग बट फंक्शन ऑफ y बाय x, और फंक्शन ऑफ y बाय x के टर्म में अगर आपने एक्सप्रेस कर दिया दैट्स नथिंग बट द डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और y बाय x को v रखा, बाकी तो कार्यक्रम वैसा ही रहेगा कि y बाय x इक्वल्स टू v, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाय dx इक्वल्स टू v प्लस x dv बाय dx, तो v प्लस x dv by dx is equals to cot v plus v, ठीक है। v कैंसिल हुआ, you are going to get a variable separable form again, that's nothing but dv upon cot v equals to dx upon x, वो साइड्स आपने इंटीग्रेशन किया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इज देयर, इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी इट विल बिकम dv बाय cot v, मतलब ये हो गया 10v का इंटीग्रेशन, ln mod sec x, तो ln mod sec v इक्वल्स टू ln mod x प्लस कांस्टेंट ऑफ दैट इंटीग्रेशन दैट कैन बी रिटन एज ln mod c. So finally it can be written as, that result can be written as sec v is equals to xc, मॉडुलस के फॉर्म में लिखना है, मॉडुलस के फॉर्म में लिख दीजिएगा, v को रिप्लेस कर दीजिएगा y बाय x के। मॉड कहाँ रिलेवेंट होगा, जरूर होगा, वो डिपेंड करेगा x और y की वैल्यूज के अकॉर्डिंग।
ठीक है ना, अदरवाइज आप पॉजिटिव ले सकते हैं उसको, ठीक। So we have discussed about the variable separable form, then homogeneous differential equation, and now it's turn of linear differential equation. And then finally we will be discussing about the 3 more forms in fact. अभी तो हम बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट यू विल बी गेटिंग द आइडिया, और फिर मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और मिसलेनियस क्वेश्चंस में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, उससे प्रीवियस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो जस्ट नाउ अभी हमने डिस्कस किया, एंड वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. देयर आर गोइंग टू बी 3 मोर फॉर्म्स. वेरिएबल सेपरेबल तो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल नहीं है लेकिन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी. होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, so there is a form reducible to homogeneous differential equation, and we are going to discuss about the linear differential equation, and there is going to be a form reducible directly जो linear differential equation नहीं है लेकिन जिसे reduce किया जा सकता है linear differential equation के form में. तो 3+3 actually, but फिलहाल तो हम linear differential equation को समझें. linear differential equation, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके सिलेबस में, तो dy बाई डी एक्स जो आने वाला है, तो dy बाई डी एक्स तो सेकेंड ऑर्डर तो हो नहीं सकता, इट कैन नॉट बी डी टू वाई बाई डी एक्स, फिर रहेगा तो dy बाई डी एक्स ही है ना, उससे ऊपर की बात तो हो नहीं सकती. देखिएगा, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन लाइक, ध्यान से देखिएगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वस टू क्यू, फंक्शन जो है y इक्वस टू एफ एक्स, x is the independent variable and y is the dependent variable there, है ना, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है तो dy बाई डी एक्स, या y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. सो इट इज नथिंग बट dy बाई डी एक्स. जब मैं लिख रहा हूँ तो दैट dy बाई डी एक्स इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ना, y is the dependent variable and x is the independent variable, so it is a derivative of dependent variable with respect to इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ऐसा हुआ ना, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, दैट y इज नथिंग बट, यहाँ पर ये आवश्यक है, वी आर डिस्कसिंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, दैट पी वाई इक्वल्स टू क्यू, y की डिग्री 1 है. व्हाट अबाउट p एंड q? दोस p एंड q आर सम फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x और सम कांस्टेंट. यहां पे ये भी क्लियर कर दूं कि p और q जो है वो फंक्शन ऑफ x है, x के फंक्शन से y के फंक्शन नहीं होंगे. p एंड q आर फंक्शन ऑफ x, x के फंक्शन होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे. ऐसा भी हो सकता है कि एक फंक्शन ऑफ x से दूसरा कांस्टेंट है, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन इट कैन नॉट बी फंक्शन ऑफ y, इट कैन नॉट बी फंक्शन ऑफ y. ये जो इक्वेशन गिवन है दैट इज dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू q, यहाँ पर जो टर्म्स होंगे, एक होगा dy बाई डी एक्स differential coefficient of y with respect to x, and then plus py, y raised to power 1, y की डिग्री 1 ही होगी, and there could not be any other function of y, there could not be any other function of y, so dy by dx plus py equals to q, that's a linear differential equation. Now how to solve that linear differential equation? linear differential equation को कैसे solve किया जाए? बहुत सिंपल सा टास्क होता है. First you have to find out the integrating factor. First you have to find out the integrating factor, and that integrating factor is nothing but e raised to power integral of p dx. if integrating factor find out करते हैं, that integrating factor is e raised to power integral of p dx. p and q are some function of x or some constant, so integrating factor is coming as e raised to power integral of p dx. First you have to find out the integrating factor. First you have to, पहले समझ लें बेहतर होगा. पहले तो आपको देखना होगा, पहचानना होगा, इट इज इन विच फॉर्म, डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन विच फॉर्म, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजेनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. इफ इट इज इन द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, फर्स्ट फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e raised to power इंटीग्रल ऑफ p dx. एंड सेकेंड स्टेप, स्टेप 1 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करोगे और सेकेंड स्टेप में आप डायरेक्टली रिजल्ट लिखोगे, एंड दैट सॉल्यूशन इज, दैट्स स्टेप 1. दैट इज स्टेप 2, डायरेक्टली रिजल्ट.
Solution, what is that solution? Y into integrating factor is equals to whole integral of q into integrating factor dx plus c. यहां पर जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट किया जाता है तो e रेज़ टू पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, इंटीग्रेशन के समय आपको हमेशा सजेस्ट किया गया है कि इंटीग्रेशन के साथ में इंटीग्रेशन का कांस्टेंट भी लिखा जाए, लेकिन जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते समय आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाते हैं. द रीजन इज वी आर टेकिंग केयर ऑफ दैट कांस्टेंट. फाइनली रिजल्ट में हम कांस्टेंट का केयर कर रहे हैं. इवन इफ अगर आप यहाँ पे कांस्टेंट लगा देंगे, इधर भी कांस्टेंट, यहाँ पर भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, यहाँ भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, कांस्टेंट कैंसिल होगा और इसी कांस्टेंट में मैनेज होगा. वो दो स्टेप का गेम है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बट दैट्स ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, है ना. ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी गई है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y, ये y के टर्म्स में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू. तुरंत आपके दिमाग में आएगा सर ये क्या हो गया, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है और ये आपने रिजल्ट कैसे लिख दिया. यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस विद डेरिवेशन, यू आर गोइंग टू लुक फॉर दैट. लेकिन साथ ही साथ एक और बात देख लें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में देयर कुड बी द सेकंड फॉर्म. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये y के टर्म्स में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है मैंने. नाउ लुक फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x. कैसे लिखोगे, ध्यान से देखिएगा. dx बाई dy प्लस px इक्वल टू q. और यहां पे जरूरी है कि p एंड q फंक्शन ऑफ y या कांस्टेंट हो सकते हैं. p और q जो है ये फंक्शन ऑफ y हो सकते हैं या कांस्टेंट हो सकते हैं. एक फंक्शन ऑफ y कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन इट कैन नॉट बी फंक्शन ऑफ x देयर. It cannot be function of x there. So it is dx by dy plus px equals to q. That's the differential equation. Linear differential equation. It's again a linear differential equation in terms of x. Again, result लिखना दो स्टेप का गेम है. Step 1, to find out the integrating factor. That integrating factor here is e raised to power p dy. Earlier it is, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y है तो इट इज इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर इंटीग्रल ऑफ p dx. नाउ इट इज इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू पावर इंटीग्रल ऑफ p dy. स्टेप 2 में आप रिजल्ट लिखोगे, सॉल्यूशन लिखोगे. दैट सॉल्यूशन इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c. ये आपको पहचानना होगा वेदर दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इन टर्म्स ऑफ x और इन टर्म्स ऑफ y. ये आपको देखना होगा कि यार ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x के टर्म्स में या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y के टर्म्स में. ठीक है. लेकिन ये दो तुरंत जो डाउट आएगा सर कि ये कैसे लिख दिया आपने, क्या कंसेप्ट है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का और हाउ टू राइट द रिजल्ट जो लिखा गया है, कैसे लिखा जाए. यस, वी डिस्कस दैट. नाउ लुक फॉर दिस एग्जांपल. dy by dx plus 3x square upon 1 plus x cube into y equals to sin square x upon 1 plus x cube. डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा ही अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें तुरंत समझ में आता है कि ओके दैट्स ए डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड दैट्स ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y के टर्म्स में एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना. dy by dx plus 3x square upon 1 plus x cube into y equals to sin square x upon 1 plus x cube. That's the linear differential equation in y. दो स्टेप्स मैंने बताई हैं अभी और उनको हम एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट स्टेप में मैंने कहा आपको कि यू हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फर्स्ट. दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इन फैक्ट e रेज़ टू पावर इंटीग्रल ऑफ p dx. यहाँ पे क्या होगा, e रेज़ टू पावर इंटीग्रल ऑफ व्हाट इज p हियर, 3x square upon 1 plus x cube dx. That will be in fact e raised to power
1 प्लस एक्स क्यूब को आप t रखोगे, डेरिवेटिव ऑफ दैट इज 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt dt बाई टी log t, डायरेक्ट लिख सकते हैं e रेज़ टू पावर ln 1 plus x cube here, and I am taking that, I am not taking that mod sign, I am taking it positive. क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, e रेज़ टू पावर ln 1 plus x cube, and that can be written as, क्या लिख सकते हो आप उसको, e रेज़ टू पावर 1 plus x cube. उसमें सोचना तो नहीं हो रहा है ना आपको, कुछ ज़्यादा सोचना तो नहीं पड़ रहा है. e रेज़ टू पावर log x with base e is nothing but x, log की बेसिक डेफिनेशन. 1 plus x cube, that is the integrating factor that you have got ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला. अब देखो क्या कंसेप्ट है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, उस बात को समझो. अच्छा, और व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप में आप लिखते हैं रिजल्ट. व्हाट इज दैट रिजल्ट? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ q. व्हाट इज q हियर? साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, साइन स्क्वायर x upon 1 plus x cube, that is q, into integrating factor dx plus c. ठीक है, ये 1 plus x cube कैंसिल हुआ. हाउ टू इंटीग्रेट साइन स्क्वायर x? बोले सर ये तो बहुत परेशानी वाली बात है. इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x, शायद आप सोच रहे होंगे परेशानी की बात आपके लिए हो, हम कंफर्टेबल हैं. cos 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x को लिखोगे आप 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 2 dx प्लस कांस्टेंट. इंटीग्रल ऑफ हाफ विल बी हाफ x माइनस ऑफ साइन 2x डिवाइड बाय 2. वो रिजल्ट होगा 2 पूरे में डिवीजन में. ठीक है, जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते समय इंटीग्रेशन का कांस्टेंट नहीं लिखते हैं. द रीजन आई हैव गिवन टू यू, क्योंकि आप कांस्टेंट को, यू आर टेकिंग केयर ऑफ दैट कांस्टेंट इन द फाइनल रिजल्ट. सॉल्यूशन में आप कांस्टेंट को लिख रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, लेकिन अब बात यह आई कि सर आखिर चक्कर क्या है, ये आपने बता तो दिया है, तो वही प्रोसीजर हो गई कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद में उसका सोल्यूशन. रीजन क्या है सर, ये चक्कर क्या? देखो बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन फिर से देखिए, ये तो हो गया, दैट्स द रिजल्ट. इंटीग्रेट करना आपको. क्यों हुआ? क्या है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो 1 प्लस एक्स क्यूब आया? आखिर है क्या ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर? क्यों इसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहा गया? देखिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है. हमने क्या किया, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने 1 प्लस एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया. ये बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आखिर कंसेप्ट क्या है, ये क्या है ये कंसेप्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर. पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया. इनफैक्ट अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हटा देता हूं टर्म. अभी पूरी इक्वेशन को 1 प्लस एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया. 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर इंटू वाई. बहुत छोटी सी बात है, आपको बहुत कहीं कहीं दिक्कत नहीं होगी. 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स. पूरी इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको आपने 1 प्लस एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, थोड़ा ही ध्यान से देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा कि 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स plus 3x square into y equals to sin square x. It can be also written as d by dx of y into 1 plus x cube. चेक करिए जरा, आप ऐसा लिख सकते हैं. एग्जैक्ट डिफरेंशियल बना लिया हमने इसको. ध्यान से देखिएगा, y इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करोगे. 1 प्लस एक्स क्यूब एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x dy बाय dx प्लस y एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर. आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो 1 प्लस एक्स क्यूब है, तो 1 प्लस एक्स क्यूब क्यों कहा गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर? ये वो फैक्टर है जिससे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पर वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है. डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब लिख पा रहे हैं हम इसको.
आपको तो इसको फाइंड आउट सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है मतलब डी बाई डी एक्स को रिमूव करना है आपको, तो इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दैट्स नथिंग बट y into 1 plus x cube is equals to integral of sin square x dx। इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड्स। भाई इसको ऐसा लिख सकते हो ना आप, डी टाइम डी ऑफ बोथ साइड से इंटीग्रेशन किया। बोर्ड पे देखिए जरा ये जो रिजल्ट आ रहा है, और इधर देख लीजिए जरा, उतनी तो बात है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, व्हाट इज दैट? ई रेज़ टू पावर इंटीग्रल और इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज द फैक्टर व्हेन वी मल्टीप्लाई दैट कंप्लीट इक्वेशन, दैट इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड विद दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आप उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बना पा रहे हो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ में आई क्या बात? 1 प्लस एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करने पर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बन रहा है ना, ये y इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बन रहा है, ये फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, दैट फैक्टर इज नथिंग बट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बोले सर हम कैसे सोचेंगे? बता तो दिया कैसे सोचेंगे। दैट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज़ टू पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, दैट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये दो स्टेप का काम है आप लोगों के लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना और सेकंड स्टेप में रिजल्ट लिखना। आपको पहचानना भर है कि वेदर इट्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y और इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, now again look for dy by dx plus py equals to q, linear differential equation in y, p and q both are some functions of x or it could be some constants। अब जो मैंने क्वेश्चन लेके बात समझाई है उसको जनरलाइज कर देता हूं मैं। e रेज़ टू पावर इंटीग्रल ऑफ p dx मल्टीप्लीकेशन विथ e रेज़ टू पावर इंटीग्रल ऑफ p dx in that complete differential equation, that complete linear differential equation which is there in terms of y has been multiplied by e raised to power integral of p dx, and the reason is it can be reduced like d by dx of y into e raised to power integral of p dx equals to q into integral of p dx, and now integration with respect to x both sides. When you integrate with respect to x both sides, it is y into integral of y into e raised to power integral of p dx is equals to integral of q into e raised to power integral of p dx dx plus c, है ना। इस स्टेप पे आप इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स करते हैं। ये जो बात मैंने क्वेश्चन लेके समझाई, एंड दैट वाज द रीजन कि अगर मैं डायरेक्टली ये लिखता तो वो सीधे सीधे समझ में नहीं आता है। आई हैव टेकन द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिया और उसकी हेल्प से समझाया, एंड दैट इज द रिजल्ट। इट इज नथिंग बट y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx plus that is the result, that is the solution of that। You can also note down this। So just now I have discussed the linear differential equation and these three questions based on the linear differential equation itself, and then finally we'll be discussing about the miscellaneous questions। First one, if you observe this first one, dy by dx plus lambda y equals to e raised to power ax। आप अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं dy by dx plus lambda y equals to e raised to power ax, that's a clearly a linear differential equation in y के टर्म्स में, that's a linear differential equation in y, linear differential
equation in y. What is the value of p? P is a constant which is nothing but lambda. What about q? Q is a function of x which is e raised to power ax. To solve this differential equation आपने पहचाना, okay, that's a linear differential equation in y. आसानी से हम बना लेंगे. That's nothing but the integrating factor you are going to find out, e raised to power integral of p dx. Then that integrating factor is e raised to power integral of p. What is that p? Lambda x dx. Lambda is a constant there which is nothing but the p, and it will be e raised to power lambda x. As I suggested you, there is no need to keep constant there because constant we are taking care of that constant finally. Result में हम care कर रहे हैं उस बात को. So you are getting the integrating factor, and that integrating factor is e raised to power lambda x. Finally you have to write the solution of that differential equation का solution आ जाएगा. क्या लिखोगे आप? That's going to be y into integrating factor. Y into integrating factor, that is e raised to power lambda x, is equals to q. What is q? E raised to power ax into integrating factor e raised to power lambda x dx plus c. ठीक है? Y into e raised to power lambda x is equals to e raised to power a plus lambda x dx plus c, and simply now you have to integrate. Integration भी क्या है? e raised to power lambda x multiplied with y, that will be e raised to power a plus lambda x divided by a plus lambda plus constant of that integration. That's the result, right? Based on this, please try to solve next two also. Now look for the second one. dy by dx minus y cot x equals to cosec x. dy by dx minus y cot x equals to cosec x. Again आपने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व किया कि दैट्स ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, है ना? इनफैक्ट तीनों ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ y. तीनों ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है y के टर्म्स में, लीनियर इन y. व्हाट अबाउट p? p क्या है यहाँ पर? डू नॉट फॉरगेट अबाउट दिस माइनस साइन. p इज माइनस ऑफ cot x. व्हाट अबाउट q? cosec x. ठीक है ना? फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. प्रोसीजर बहुत क्लियर है और बहुत सिंपल है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू पावर इंटीग्रल ऑफ, माइनस साइन मत गड़बड़ करिएगा, cot x dx, e raised to power integral of minus of cot x dx. What is that integral of cot x? It's not 10x. It is e raised to power minus of ln sin x, है ना? और यू कैन राइट इट, इस माइनस को जरूर एडजस्ट कीजिएगा सबसे पहले. e रेज़ टू पावर ln mod cosec x. बोले सर क्या जरूरत है भैया? तभी आप उसको अप्लाई करिएगा. द रिजल्ट जो आप जिस रिजल्ट के भरोसे आप चल रहे हैं, दैट इज a रेज़ टू पावर log n विद बेस a इज इक्वल्स टू n. तो ये माइनस इग्नोर नहीं करना और माइनस वैसे के वैसे ही नहीं लगा देना कि माइनस साइन एक्स हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर गलत हो जाएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ऐसा नहीं हो जाए कि आप लोगों ने शायद माइनस ऑफ साइन एक्स लिखा हुआ है, काफी लोगों ने ऐसा लग रहा है मुझे. अगर लिखा है तो चुपचाप करेक्ट कर लें उसे, नहीं तो फिर ठीक है. ln mod cosec x. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिल गया मॉडुलस ऑफ cosec x. कुछ वैल्यूज गिवन नहीं है यहाँ पर, सो आई एम गोइंग टू टेक हियर cosec x. Okay, and you have to write the result now. That will be y into integrating factor y cosec x
Q, what is Q? Q is cosec x. Integrating factor is cosec x. बहुत बढ़िया. Plus C. Integral of cosec square x minus of cot x plus constant of that integral. That is the result. Now look for the third one. x sin x dy by dx plus y into x cos x plus sin x equals to sin x. एक सीधी सी बात है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए समझ में आता है इन टर्म्स ऑफ y. यहाँ पे dy by dx और y and there is no other function of y present there. y का कोई दूसरा फंक्शन नहीं है यहाँ पर, तो सीधे सीधे समझ में आता है फंक्शन ऑफ x इज प्रेजेंट देयर, इट्स गोइंग टू बी ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y. लेकिन एक और बात है, बिफोर फाइंडिंग आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड बिफोर राइटिंग द रिजल्ट, एक बात जरूर इंश्योर कीजिएगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे पहले सबसे पहले आप पे dy by dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी है. देन यू शुड डिस्कस अबाउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ऐसा नहीं कि एक साइन एक्स बाहर ही रहने ही दो, क्या है जिसको देख लेते हैं अपन, पहले उसे dy एग्जैक्टली उसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y जो स्टैंडर्ड फॉर्म में उसमें लेके आइएगा. ठीक है, dy by dx प्लस x cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय x sin x इंटू वाई इज इक्वल टू x sin x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया गया 1 बाय x sin x अपॉन x sin x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया गया. नाउ यू कैन टॉक अबाउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e raised to power इंटीग्रल ऑफ x cos x plus sin x divided by x sin x dx. बहुत ज्यादा नहीं सोचना होगा हाउ टू इंटीग्रेट दैट. x sin x को t लोगे तो x cos x plus sin x dx इक्वल्स टू dt dt by t log t e raised to power ln mod x sin x. चेक कर लीजिएगा, कंफर्टेबल है ना आप लोग इंटीग्रेशन में. Simply x sin x has been kept as t and derivative is present there in the numerator. कुछ ज़्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है. And that integrating factor is x sin x. काफी देख रहे हो ना आप, e raised to power ln वाला काफी यूज कर रहे हैं आप इसको. x sin x is the integrating factor there. और ये ध्यान रखना जो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस किया उसी को ध्यान रखना. फिर ऐसा नहीं होगा इसको लिख दिया q की वैल्यू तो sin x. चलो जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने रिड्यूस किया फिर उसको ध्यान रखने का है. नाउ द रिजल्ट. y into integrating factor y into x sin x is equals to integral of q. What is q there? 1 by x into integrating factor x sin x dx plus c. xy sin x equals to integral of sin x minus of cos x plus c. That is the result. ठीक है. Now look for these 4 questions. These are the miscellaneous questions, mixed questions of differential equations. हमने जो फॉर्म पढ़ा है वो पढ़ा है homogeneous differential equation, variable separable form, and third one is the linear differential equation, linear in y and linear in x. First one अगर आप ऑब्जर्व करें, for the first one dy by dx plus y cot x equals to 5 into e raised to power cos x. शायद बहुत सोचने में ज़रूरत नहीं है. That's clearly a linear differential equation and that's a linear differential equation in terms of y. And first you are going to find out the integrating factor of that. That integrating factor is e raised to power cot x dx is equals to e raised to power ln mod sin x, and that integrating factor is coming as sin x. सीधी सी बात है. And solution of that differential equation is y into integrating factor is equals to q, that is 5 into e raised to power cos x into integrating factor which is sin x dx plus c. ठीक है. बोले सर इंटीग्रेशन, अरे
बाय पार्ट्स की भी आवश्यकता ही नहीं है दोस्त। यहाँ पर cos x को रखिए t, cos x को t, डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इज प्रेजेंट देयर, माइनस ऑफ sin x dx dt। कहाँ परेशानी है? देयर इज नो नीड फॉर एनी पार्ट्स। ठीक है, रिजल्ट होगा दैट्स सिंपली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। इफ यू ऑब्जर्व द सेकेंड वन, सेकेंड को अगर आप देखते हैं, y dy by dx इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। बोले सर ये बन नहीं पा रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जरूरी थोड़े ना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। y इंटू dy by dx इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, दैट्स अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ज्यादा दूर तक क्यों सोच रहे हो? इट इज y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, टू स्टेप प्रॉब्लम इन फैक्ट, इज इक्वल्स टू dx। That's a variable separable form, function of y with dy and function of x with dx. Simply integrate that. 1 plus y square equals to t, 2y dy equals to dt, dt by t log t. That would be the result. खत्म। ठीक है? 1 plus y square equals to t, 2y dy equals to dt, dt by ln mod। ठीक, दैट्स द रिजल्ट। सिंपली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। कई बार वही मैंने आपसे कहा ना, ज्यादा सोचने में आ जाता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसको भी लीनियर बना रहे हैं। वो लीनियर इन y तो बन ही नहीं रहा है कहीं से कहीं तक भी, बिकॉज y स्क्वायर इज देयर। बोले सर हम लीनियर इन x का ट्राई कर रहे थे, हो सकता है, बट दैट्स अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अच्छा, और एक और बात है, किसी भी मेथड से करोगे फाइनल रिजल्ट विल रिमेन सेम। ठीक, नाउ लुक फॉर नेक्स्ट टू क्वेश्चंस, थर्ड एंड फोर्थ। इफ आई टॉक अबाउट थर्ड, वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर टेन इनवर्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। देखो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगता नहीं कहीं से कहीं तक भी। फंक्शन ऑफ y विद dy, फंक्शन ऑफ x विद dx सेपरेट नहीं कर पाएंगे। होमोजीनियस हो नहीं सकता ये, बिकॉज देर इज 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर टेन इनवर्स वाई। फंक्शन को देख के आप समझ लेंगे कि ओके इट कैन नॉट बी होमोजीनियस, एज वेल एज इट कैन नॉट बी द डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y। क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y अगर होगा तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर सम फंक्शन ऑफ x और कॉन्स्टेंट्स। y का कोई फंक्शन नहीं आ सकता वहां। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, देयर कुड नॉट बी एनी अदर फंक्शन ऑफ y डायरेक्टली। यहां तो y स्क्वायर इज प्रेजेंट, t रेज़ टू पावर टेन इनवर्स y इज प्रेजेंट, दैट्स क्लियरली फंक्शन ऑफ y। तो लीनियर इन y नहीं है, लीनियर इन y नहीं है। बट अगर आप थोड़ा ठीक ढंग से ऑब्जर्व करें तो लीनियर इन x के चांस दिखते हैं, क्योंकि लीनियर इन x के लिए dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। तो dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, वेयर p एंड q आर सम फंक्शन ऑफ x। बोले सर आपको कैसे लग रहा है लीनियर इन x होना चाहिए? यहां पर x का कोई दूसरा फंक्शन नहीं है अदर देन x। ठीक है, तो वी कैन डेफिनेटली थिंक ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। हम ट्राई कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। बोले सर है ही नहीं वहां, तो dy बाई डी एक्स गिवन है। तो dy बाई डी एक्स गिवन है तो dx बाई डी वाई में कहाँ दिक्कत है? आई कैन डेफिनेटली राइट इट 1 प्लस वाई स्क्वायर dx बाई डी वाई प्लस एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर टेन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू 0। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू 0। दोस्तों इट इज डी एक्स बाई डी वाई अरेंज किया, रीअरेंज किया, प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर टेन इनवर्स वाई। दैट्स अ प्रीवियस ईयर जेई एज वेल एज ट्रिपल ई बोथ क्वेश्चंस। ई रेज़ टू पावर टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर।
तो dx by dy plus y x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू e रेस टू पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। और अब जरा ऑब्जर्व करो इसे, dx by dy plus px equals to q, where p and q are function of y or some constant. That's nothing but a linear differential equation, and that's a linear differential equation in x. आप में से कितने लोगों ने बनाया था लीनियर इन एक्स बनाते हुए? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन? नहीं हो पाया था भाई, वेरिएबल सेपरेबल है नहीं, होमोजीनियस बिल्कुल नहीं है, लीनियर इन वाई हो नहीं सकता, तो चांस केवल लीनियर इन एक्स की है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दैट e raised to power integral of q p dx, so it will be e raised to power integral of p dy 1 upon 1 plus y square dy, and that would be e raised to power tan inverse y. So integrating factor is coming as e raised to power tan inverse y. बोले सर e के फॉर्म में आ रहा, आने दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? And the final result, it's a linear in x, so it's going to be x into e raised to power tan inverse y, x into e raised to power tan inverse y equals to q e raised to power tan inverse y upon 1 plus y square into integrating factor e raised to power tan inverse y dy plus c. बोले सर फिर बात इंटीग्रेशन पे आ गई। टेक e raised to power tan inverse y equals to t, e raised to power tan inverse y को रखिए t, डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, y के रेस्पेक्ट में आपने किया डिफरेंशिएट e raised to power tan inverse y into 1 upon 1 plus y square equals to dt by dy. क्लियर है? e raised to power tan inverse y upon 1 plus y square dy becomes dt. In fact it becomes x into e raised to power tan inverse y equals to e raised to power tan inverse y is t dt plus c. That is the result. An approach is, it's not linear in y. लीनियर इन वाई तो हो ही नहीं सकता ना, आपने देखा और समझ में आया वाई स्क्वायर इज देयर, अभी मैं कई और फॉर्म्स डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन ई रेस्ट टू पावर tan इनवर्स वाई इज देयर, फंक्शन ऑफ वाई आर देयर, लीनियर इन वाई नहीं चांस है, बट लीनियर इन एक्स का चांस है। द रीजन इज कि एक्स का कोई दूसरा फंक्शन नहीं अदर देन एक्स। तो इस ढंग से सोचेंगे तो जवाब मिलेगा आपको, लीनियर इन एक्स। Now look for the fourth question. X into sine of y by x dy equals to y into sine of y by x minus x dx. ये y by x, ये कहीं ना कहीं एक हिंट देता है आपको। हमने बताया होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फंक्शन ऑफ y by x के टर्म्स में एक्सप्रेस अगर आप कर पाते, देखिएगा dy by dx is equals to y sine of y by x minus of x divided by x sine of y by x dy by dx is equals to y by x minus of, सेपरेट कर लिया, y by x minus of 1 upon sine of y by x। चेक करिएगा, yes, we are able to write it in terms of function of y by x, और function of y by x के टर्म में लिख पा रहे हैं, तो इट्स अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन y by x इक्वल्स टू b, ठीक है।
फॉर्म को ठीक ढंग से पहचानना बहुत जरूरी होता है यहाँ पर, है ना। सो दैट रिजल्ट इज v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v माइनस ऑफ 1 बाय साइन v, कॉसेक v लिख दूं, 1 बाय साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। v कैंसिल भी हो गया, बहुत अच्छी बात है। x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉसेक v, फंक्शन ऑफ v विद डी वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी एक्स बाई एक्स। रिजल्ट वुड बी देयर, ठीक है। साइन v का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस v इक्वल्स टू माइनस ऑफ ln x plus constant and place the value of v and that will be the result. The fourth one is homogeneous. So 4 questions I have given to you. First one was a linear differential equation in y. Second one, that was the variable separable form. Third one is a linear differential equation in x. And fourth one is a homogeneous differential equation. ठीक? Now look for these 2 questions. What is the approach for these 2 questions? First one, x into dy by dx equals to y log y minus, देखो जो ऑब्जर्वेशन से कैसे करना, फर्स्ट की बात कर रहे हैं, log y, फंक्शन ऑफ y इज प्रेजेंट देयर। लीनियर इन y तो नहीं हो पाएगा सीधे सीधे, क्योंकि लीनियर इन y में dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q, p and q बोथ आर फंक्शन ऑफ x और सम कांस्टेंट, बट इट कैन नॉट बी फंक्शन ऑफ y। समझ रहे हैं इस बात को? जो लीनियर इन y जो इक्वेशन है वो y और dy by dx, बट यहाँ पे log y प्रेजेंट है। लीनियर इन x भी नहीं हो सकता, बिकॉज लीनियर इन x होगा तो dx by dy प्लस px इक्वल्स टू q, p and q आर फंक्शन ऑफ y, ln x इज प्रेजेंट देयर। लीनियर इन x के केस में x और dx by dy प्रेजेंट होना चाहिए, तो डायरेक्टली ना लीनियर इन x है ना लीनियर इन y। वेरिएबल सेपरेबल तो तब आप कहोगे जब फंक्शन ऑफ y विद dy और फंक्शन ऑफ x विद dx सेपरेट कर पाते, तब वेरिएबल सेपरेबल। थोड़ा ही ऑब्जर्वेशन और अपनी बात बन जाती है। फॉर द फर्स्ट वन I can definitely write dy by dx, and that dy by dx is equals to y by x ln y by x plus 1, चेक करिएगा, dy by dx is equals to y by x into ln y by x plus 1, ठीक है। That's a homogeneous differential equation because it can be expressed in terms of, ये function of y by x के terms में आ गया, that's a homogeneous differential equation. Keep y by x equals to v, that means y equals to vx, differentiation with respect to x is v plus x dv by dx, v plus x dv by dx is equals to v log v plus v, v cancel होगा, you are always going to get a variable separable form when you solve this homogeneous differential equation, v log v dv upon v log v equals to dx upon x. It's a variable separable form, so simply integrate that. log v को t रखोगे तो 1 by v dv equals to dt, dt by t log t, in fact that will become ln mod of ln v equals to ln x plus constant of that, and that constant can be written as log c dash, कोई दिक्कत नहीं है। So that's a homogeneous differential equation because it can be expressed as a function of y by x, ये function of y by x के terms में आ रहा है, तो ये homogeneous differential equation। सेकेंड वन बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, फॉर द सेकेंड dy by dx प्लस y इक्वल्स टू e to the power x, दैट्स अ लीनियर इन y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आप लिखेंगे दैट विल बी e रेज़ टू पावर इंटीग्रल ऑफ 1 dx, दैट विल बी e रेज़ टू पावर x
एंड फाइनल स्टेप रिजल्ट लिखोगे आप y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर and that is the result. E raised to power x has been kept as t, e to the power x dx equals to dt. ठीक है.